Good morning, friends. Welcome to my physics class. Dear students, today we will learn chapter 1, the electric charges and field. Students, in this chapter we will study about the static charges, their properties and interaction between them. Such study is called static electricity. Students, here the static means that anything that does not move. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जेस. व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, चार्जेस एक टाइप का प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी. जिस तरह से मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, सिमिलरली चार्जेस इज आल्सो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द particle. So what is the charges? So electric charges is the fundamental intrinsic property of particle just like mass. ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने बोला कि just like the mass. So just as the mass is responsible for the gravitational force between two particles, similarly here charges is also responsible for the electrical force. Now अब यहाँ हम बात करते हैं which are the types of charges. So there are two types of charges. One is positive charge and second is negative charge. Okay. The name of this positive and negative charge is given by the American scientist Benjamin Franklin. अब ट्रेडिशनली चार्जेस को, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं. तो ट्रेडिशनली चार्ज ऑन प्रोटॉन कंसिडर एज positive and as on electron is negative. ठीक है. अब सपोज the दो प्रोटॉन when come to close to each other, जैसे कि एक प्रोटॉन यहाँ है एंड दूसरा प्रोटॉन, व्हेन वी ब्रॉट टू प्रोटॉन्स क्लोज टू ईच अदर, देन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द रिपल्सिव फोर्स. प्रोटॉन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. सिमिलरली अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को भी एक दूसरे के पास लाएंगे तो इट विल रिपेल्स ईच अदर एंड दैट फोर्स इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स. सो वी कैन से दैट लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, लाइक चार्ज repels each other. Similarly, unlike charge, attract each other. जैसे कि एक प्रोटॉन एंड
means attractive force. So friends, now we understand how matter acquire charges. So I'll write that how matter acquired charges. So friends, आप लोग जानते हैं कि all the matters are contain equal number of proton and electron in a normal state. So basically they are electrically neutral. ठीक है? So all matter contains equal number of proton and electron in normal state. So they are electrically neutral. दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड विद द फोर्स दैट ऑफ द प्रोटॉन बाउंड इन द न्यूक्लियस. सो हेंस जब whenever any process takes place of the exchange of charges, electrons are the first to transfer from one body to other. ठीक है? एंड जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं तो ये जो इक्वल ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं एंड द बॉडी विच loses electron becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged. So whenever we know that electrons are weakly bound with the force then the proton which bound in the nucleus. Hence whenever there is an exchange of charges, whenever there is an exchange of charges, there is an electron, there is the electrons are transferred from one body to the other. ठीक है? The body which loses
electron becomes positively charged because have more proton than similarly the body which gains electron becomes negatively charged because they have more electron as compared to प्रोटॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ज बॉडी है, हाउ वी डिटेक्ट द चार्ज बॉडी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं दूं आपको, तो एक ग्लास रॉड, when a glass rod rubbed with a silk cloth, the glass rod loses electrons and these electrons are transferred to silk cloth. So glass rod becomes positively charged, whereas silk cloth becomes negatively charged because it receives extra electron. Now how we detect this material like glass rod or silk cloth are charged? So the simple instrument which is used is known as gold leaf electroscope. So device detect the charge body is called gold leaf electroscope। ये सिंपल डिवाइस इस तरह से होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके अंदर एक मेटल का रॉड होता है, उसके ऊपर एक बॉल, and this metal rod are kept in a vacuum flask। ग्लास का एक वैक्यूम फ्लास्क होता है, इसके अंदर इसको प्लेस करते हैं, and the other end of this rod there is a too thin gold leaf लगाते हैं। दिस इज फिक्स, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज मेटल रॉड, दिस वन इज metal ball on the head of the rod, this is ग्लास जार। अब क्या होता है, सपोज मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया। नाउ ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। एक ग्लास रॉड को मैं लेके यहाँ आता हूँ, दिस ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आई प्लेस दिस ग्लास रॉड टच दिस मेटल बॉल, तो क्या होगा, द इज मेटल बॉल, सो द ये जो गोल्ड लीफ है यहाँ, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस ग्लास रॉड। सो इलेक्ट्रॉन्स आर, जो इलेक्ट्रॉन्स है गोल्ड लीफ के ऊपर, दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस मेटल रॉड टू गोल्ड, एंड व्हेन आई टच दिस, सो दे नलीफाई and then
here they nullify the effect. ठीक है, but when these electrons are coming to this glass rod, this gold leaf becomes positively charged. ठीक है, this becomes positively charged. So they repels each other because both the gold leaves are positively charged. So they repel each other and they diverge like this. Diverge like this instead of this. ठीक है. So इसके इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम जान सकते हैं कि ये जो ग्लास रॉड था वो चार्ज है कि नहीं है. सिमिलरली अगर आप इसके ऊपर सिल्क क्लॉथ टच करवाते हैं तो क्या होगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ये गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाएंगे एंड दिस गोल्ड लीफ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस गोल्ड लीफ विल डाइवर्ज. सो ये इंटेंसिटी जो उसकी डाइवर्जेंस की जो इंटेंसिटी है वो हम मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से. वी कैन नॉट measure that how much charge are accumulate on this glass rod or silk rod. ठीक है, अब हम बात करते हैं each इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की. सो सबसे पहले उसके पहले हम देख लेते हैं what is the SI unit of the charge. So SI unit of the charge, SI unit of charge is coulomb. उसको abbreviated we can write that capital C. as capital C. तो उसका सिंबल है कैपिटल C. अब प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको चार्ज ऑन प्रोटॉन is E is equal to plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, whereas charge on electron is E is equal to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ठीक है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम. अगर प्रोटॉन है तो वी कंसीडर दैट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो उसका वैल्यू हम लेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. अगर इलेक्ट्रॉन है देन वी कंसीडर इट्स अ नेगेटिवली चार्ज, सो हम उसका वैल्यू लेंगे minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So now friends, let's learn something about the properties of charges. उसमें first property है quantization of charge. So friends, all the experience carried out so far shows that the magnitude of all the charges found in nature are in integral multiple of a fundamental charges. That means that the Q is a total charge of a body can be written as Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3 and so on, and the value E is a fundamental charge, that is charge on proton and electron. तो हम उसका वैल्यू लिखते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम, प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम. उसका मीनिंग ये हुआ अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वी पुट इन द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम, and if charge body is negatively charged, so we put it that it gains extra electrons, so minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This fact is known as the quantization of the charges. अब second property है that is the conservation of charge.
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो जैसे हमने आगे देखा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ का। तो उसमें देखेंगे तो बिफोर रबिंग द ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ आर न्यूट्रल इन स्टेट। मतलब ग्लास रॉड के ऊपर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी सेम था। सिमिलरली सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी सेम था। तो क्या हुआ, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ दैट दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर न्यूट्रल। सो उसके ऊपर चार्ज क्या था, जीरो था। अब दोनों इसका एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ है, दोनों का एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम के बाहर हमें नहीं जाना है। तो ये सिस्टम में हम दो चार्ज का सम करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड के ऊपर कितने चार्ज है, जीरो है। सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितने चार्ज है, जीरो है। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब हम ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड के ऊपर से सपोज हम मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो ग्लास रॉड क्या बनेगा, तो ग्लास रॉड बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब जितने 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके सिल्क क्लॉथ के ऊपर गए हुए, तो सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। वो कितना चार्ज होगा, तो -100 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब हम उसका एडिशन करेंगे, ग्लास रॉड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड एंड नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ, उसका चार्ज का एडिशन करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं। देखो ग्लास रॉड है, अब आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज कितना हुआ, हम Q1 लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू प्लस 100E सिल्क क्लॉथ, उसके ऊपर जो चार्ज है Q2 उसको हम लेंगे तो कितना होगा, -100E। सो द टोटल चार्ज जब हम लेंगे Q, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो क्या होगा, प्लस 100E प्लस -100E, तो टोटल क्या हुआ, Q इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर रबिंग कितना हुआ, 0। पहले कितना था, बिफोर रबिंग 0, तो हो गया। सो चार्ज कहाँ जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज बाहर अंदर से, सिस्टम के अंदर से चार्ज बाहर नहीं जाता और बाहर से कोई चार्ज सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे different body का different method how to make the body charge with different method and Coulomb's law.